Greetings of the day. I'm Ishita Janeja, and on behalf of EDC Talks, I welcome you all to today's podcast on Fix Your Finances. EDC Talks focuses on the topics of interest in today's world and helps the viewers to get insights on different aspects. Today we have a very special guest, Mr. Pranay Loya, currently the associate at Bain& Company. He's a content creator in the field of finance, and his content is written in such a way that no matter how simple or boring the topic is, it becomes interesting and intriguing. He's also LinkedIn Top Voice 2022. We are really glad to have you with us today, sir. Thank you so much, Ashita, for the introduction. Really happy to be here. All right, let's begin with our questions. Finance is a topic that has created quite a buzz in the last 2 years. Even that uncle in your neighborhood is talking about financial freedom after forwarding some WhatsApp videos on the group. According to you, what is the true definition of financial freedom? Is it different after you've started earning? Okay. So, coincidentally, I got a message from one of the senior folks in my family who was telling, okay, why are you still working in your job? You should just retire, just aim for retirement once you're 40. Why are you working right now? So everyone thinks that financial freedom is just, getting ready for retirement, that you don't have to worry about, just have to leave the job, you just have to leave working and just start focusing on traveling, whatever the person wants to do, right? That's something that people feel, and everyone has a direct meaning that, okay, financial freedom means this. But for me, I feel having a corpus behind you that will help you not to worry about retirement is one thing, but retirement is just not proportional to financial freedom. Ultimately, financial freedom is a psychological impact, right? For example, if I'm working at a particular company and the next day I'm fired, right? Will I be able to sustain myself? That's one thing that that really affects me. Ultimately, इंसान के जीवन में there are like four major expenses that people have. One is education. For your education, undergrad or masters, you will have to spend fixed amount of money. Like in MBA in India would cost 20 lakh, 30 lakhs. That's one of the major expenses that people do. Another is marriage, because for marriage, in India, if you look at, people want to spend extravagantly in terms of how they want to spend. Some marriage would end up costing more than a crore, totally up to how the person wants to spend. Third expense would be the child's education, right? So everyone has a, once they get married, so they'll have a child, and for them, for their education, that's something that they will focus on. And lastly, it's retirement, right? So these are the four things that people really care about, and the you can spend from 10 lakh to 1 crore depending on whatever you want to spend, right? So it all depends on how extravagant you want to make that particular thing. So ultimately, financial freedom would come when all your four needs are satisfied, right? So what you as a person should do right now is try to identify three or four major expenses in your life that you feel is going to be one of the major things in your life, and try to work towards it, right? Try to create a corpus in order to make sure that your goals are achieved in that such a way, so that even if you do not have your job, even if you do not have any other income coming in, you are sure that you'll be able to be psychologically free in terms of it will not have an impact about your decisions that you're making, right? And ultimately, इंसान को रोटी कपड़ा और मकान, these are the three things that people need, right? And उसके अलावा जो भी खर्चे हैं, जो भी expenses है, it totally depends on how do you want to spend. So जब आपकी ये तीन चीजें satisfied है, रोटी कपड़ा and मकान, rest everything can be managed based on how much you earn. So I'll tell you a recent experience that I have faced. So I had gone to Himachal for my trip, and वहाँ पर I found few folks who were selling few apple pieces. Himachali apples are very famous. So I talked to them. I was telling them, okay, why don't you sell Himachali apples across India? Because you can earn a lot of money from this, because all the major guys are selling it, and these farmers are not getting any particular money. So I was like, why are you not selling it? Why are you not expanding? You have so many resources, you can do it. So the reply that they gave me is something that really shocked me, because they said, if I earn 1,000 rupees a day, I'm satisfied with it. I do not want to earn 1 lakh. I do not want to earn 10 lakhs, because my needs are being satisfied with 1,000 rupees a day. For me, money is not important more than that. For me, whatever I'm getting, I'm totally happy with what I'm getting. So it's all about a psychological thing rather than a, because आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए भी हो गए, आप पहले
नॉर्मल एक्स का डिओड्रेंट लगाते होगे, बट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मोर नाउ यू विल वांट अ गुची. आप नॉर्मल वॉलेट यूज करते थे, थोड़े समय बाद आपको कुछ और महंगा चाहिए होगा. आप नॉर्मल कार यूज कर रहे थे, आपको BMW चाहिए होगी. So if you earn more, your retirement corpus won't differ. It totally depends. It has to be a psychological phenomena at the end. That's what I believe. All right. Would anybody like to ask any questions from sir regarding this? Okay, so I feel okay. Dhruv has a question. So I am telling that if I am a founder of a company, I have a one product and I have earned a good profit. So एंड प्रोडक्ट करने की बजाय मेरा जो एक प्रोडक्ट है मैं उसी को अपग्रेड करूंगा, या फिर मैं अपग्रेड ना भी करूं, मेरी सेल्स पहले 100 हो रही थी, मैं उसको सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग करके सेल्स ही बढ़ाऊंगा अपनी. उस प्रॉफिट का मैंने यूटिलाइज जो करा है वो ना प्रोडक्ट अपग्रेड करने में नहीं करा, मैंने मार्केटिंग में करा है. Okay. और अपनी लिविंग मैंने वही रखी है. Okay. तो सिंपल ना मैंने गुच्ची कर लिया या फिर कोई भी परफ्यूम यूज नहीं करा है एक्सपेंसिव. Okay. So you are saying that you are investing again back into business. हाँ. So that's a great thing, right? Ultimately, everyone wants to earn money, but we're talking about financial freedom than a business profitability right now. So आप अगर financial freedom की बात कर रहे हो, that comes to an individual perspective. But when you talk about business profitability and business expansion, that comes into the business perspective. So दोनों के motive, दोनों के ambition, दोनों के requirement अलग है. The goals are totally different. When you're running a business, you want to maximize your profit. But when you are doing it for yourself, where you are, आप business के profit कमा के, again you will spend on yourself or whatever you want to spend, right? I'm talking about the end use case. How do you manage your spending and how do you go ahead with that? That is something that I was catering to. All right, that was quite commendable about how we can spend the profit for our use. I mean, individually, that is really nice. Okay, so moving on to the next question. Um, do the younger generation, specifically Gen Z, have to worry about their finance as everyone is focusing on investing or generating multiple revenue streams? Okay. So if you look at Instagram, LinkedIn, YouTube, you would see thousands of influencers giving you ज्ञान कि start investing early. आपके जीवन में if you're not investing early right now, आपके जीवन में कुछ नहीं जाएगा. आप फेल हो जाओगे लाइफ में, आप कुछ नहीं कर पाओगे. आप बाहर खाना अगर छोड़ दोगे, आप जोमेटो से ऑर्डर करना बंद कर दोगे, उसकी जगह आप जोमेटो के शेयर ले लोगे, तो यू विल रिटायर अर्ली. ऑनेस्टली, इन्वेस्टिंग अर्ली इन योर लाइफ इज रियली इंपॉर्टेंट. आप जितने जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हो करो, बट डू नॉट गिव अप ऑन द स्मॉल जॉयज ऑफ योर लाइफ, राइट? आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैसा उठा के सिर्फ मजे करने के लिए कर रहे हो, बट डू नॉट गिव अप ऑन योर स्मॉल जॉयज ऑफ योर लाइफ. इफ यू फील taking a trip to Himachal is something that you really love, do it. Because आप वही 1,000 रुपए बचा के उस पे अगर 2% रिटर्न की जगह 5% कमा लोगे, 20 रुपए 50 रुपए में आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, राइट? बट वो 1,000 रुपए में one thing is your discipline to invest. That is something that you should learn. For me, I'm not against investing early. My point is invest करना सीखो, but do not fret over it कि भाई अगर if I'm not investing, I'm behind in my life, right? So this is it's a byproduct of a privilege. Our worries, जो भी हमारी worries है, it's just about our privilege, right? मैं अगर अमीर फैमिली से हूँ, for me 1,000, 2,000, 50,000 रुपए कोई मैटर नहीं करते. For me, I would just go on spending. But if I'm from a family where every rupee counts, or 1,000 रुपए भी it's a very big thing, again I'll be very focused about spending. How do I spend it? And it's all about हमारे worries and everything are part and parcel of a privilege, the way we have it, right? So in your early 20s, focus on your skill development. That is the first thing that I tell you. Because आप 10,000 रुपए का कोर्स लेने के लिए पहले आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, मुझे 10,000 का कोर्स लेना है, एंड उसके जगह मैं सोचता हूँ काम करता हूँ 10,000 की SIP चालू कर दी, 10,000 का एक प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ. उसमें आप बैठ के पूरा दिन वेस्ट करोगे कि यार मैं 10 के जगह 12% रिटर्न कमा सकता हूँ, 2% एक्स्ट्रा. आप अगर देखोगे साल में आप अगर 10,000 रुपए डाल रहे हो, आपको 10% आ रहा है, मतलब 1,000 रुपए. उसकी जगह आप 15% भी कमा लोगे, आपको 1,500 रुपए मिलेंगे. मतलब 500 रुपए के लिए आपने साल भर अपना टाइम स्पेंड किया है जस्ट टू मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट. एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स रियली डिफिकल्ट टू बीट द इंडेक्स. अगर आप एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर अ मंकी वाज गिवन एन ऑप्शन टू चूज स्टॉक्स, एंड एक इंसान जो दूसरा उसके अपोनेंट था, वो बंदा एक्टिव फंड मैनेज करता है, हु इज वेरी वेल रिसर्च्ड अबाउट फाइनेंस, हु नोज व्हाट टू डू. वो इंसान को बंदर के सामने वो हार गया बिकॉज द मंकी वाज एबल टू चूज the stocks better.
So isn't it surprising कि you don't need a lot of knowledge to do it? You can just follow the index and you can make a lot of money. In the initial stage when the corpus isn't high, you need to learn investing is important, but you should not just worry कि भाई जीवन में investing ही सब कुछ है and initial stage पे मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है. एक बार इंसान को पैसा मिलना चालू हो जाता है, they start leaving everything around कि I am satisfied with what I am earning. आज 10,000 कमा रहा हूँ, कल मैं 15 कमाऊंगा, कल मैं 20 कमाऊंगा, तो वो छोटे छोटे पैसे कमाने के लिए अपना फ्यूचर पूरा छोड़ देता है. So for you, when you want to Gen Z को जो अभी भूत चढ़ा है सबको because of the influencers, right? कि हर इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि इन्वेस्ट करो because they are getting commissions out of it, right? आप ज़ेरोधा का अकाउंट खोलोगे तो उनको पैसा मिलेगा. आप ज़ेरोधा में ट्रेड करोगे या ग्रो में ट्रेड करोगे तो उनको पैसा मिलेगा. अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? मुझे तो पैसा कमाना है. मैं तो आप लोग को वही गाइड करूंगा कि आप पैसा कैसे कमाओ. बट इनिशियल स्टेज में फोकस ऑन योर स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है, स्किल इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बट इनिशियल स्टेज में व्हेन 1,000 2,000 20,000 रुपए से आपको फर्क नहीं पड़ता, वो समय आप स्किल्स में डालो. जब आप 25-30 साल के हो जाओगे, व्हेन यू नो हाउ टू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट करना जब आपका कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा या यू अर्न सिग्निफिकेंट अमाउंट, दैट टाइम यू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका घर भी उससे चलेगा, आपके शौक जो भी आपकी चीजें वो उससे चलेगी. तो इनिशियल स्टेज पे फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. दैट्स व्हाट आई वुड से. Also, well, that was amazing. Yes, Vaibhav, you might ask a question. As Pranay said कि एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. करंटली जो कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूब पे देख लो, सब के सब मोस्टली यही प्रेजेंट करते हैं कि start investing as early as possible so that by 40 you have a corpus of at least 50 to 1 crore in order to live your life to a standard that you are hoping to dream now. इसके ऊपर से फिर अब since 2020 कुछ ज़्यादा ही स्टॉक मार्केट के बारे में चल गया है, जिसमें इंसान आप देखोगे पहले 1 करोड़ कुछ अकाउंट इंडिया में 1 या 2 करोड़ अकाउंट थे कोविड के पहले. कोविड के बाद वो 4 टाइम्स बढ़ गए. एंड जस्ट इमेजिन क्यों बढ़े हैं, राइट? अब आप घर में इंसान बैठा है, उसके पास फ्री टाइम है, इंसान को पैसे कमाना है, कोविड में जॉब नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? व्हाट्स द इजीएस्ट वे? स्टॉक मार्केट करेगा. अब इंसान स्टॉक मार्केट नहीं करेगा एंड दीज इंडस्ट्रीज सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि भाई इंसान को काम नहीं है, गैम्बलिंग करना सिखाओ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना सिखाओ एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो जो बिजनेस का जिस समय जिस चीज का बूम हो रहा है, दे स्टार्ट प्रमोटिंग दैट. सो दैट इज हाउ इट इज राइट नाउ. Yeah. So I think Shivam had a question. Yeah. So really insightful, Pranay sir. Just wanted to know that you mentioned that a balance is very important as to how much do we invest and versus the time that we have right now in our hands, right? So how do we create that balance? Like time that you have, right? हाँ, राइट. ये कब हमें पता चले कि यार ठीक है, at this point in time this is not that important, we need to focus on our studies more or maybe skill building, just like you mentioned. How do we decide that? What are the factors that would allow us to judge that? So there are two things. One is if you are interested in stock market and finance as a career, okay, at the initial stage of your life, 20s is something that I feel 19, 20, 21, 22, these are the formative years where you decide your career in terms of which field do you want to go in, right? आप 30 साल के बाद भी करियर चेंज कर सकते हो, 50 के बाद भी करियर चेंज कर सकते हो. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि when you have to decide if finance or stock market investment is something that you look up to as a career, ठीक है? If you feel this is something that you want to do, आप इसमें इन्वेस्टिंग में ध्यान दो, क्योंकि that is a learning for you right now. बट आपको अगर लगता है कि फाइनेंस इज अ साइड प्रोडक्ट, कि मेरा जो मैं पैसा जो मेरी स्किल है, फॉर एग्जांपल कोडिंग इज समथिंग दैट आई लव, राइट? या मुझे वेबसाइट बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, सो उसमें से जो पैसा आएगा मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा. दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. तो जस्ट इमेजिन आप हर इंसान आजकल क्या कर रहा है, मेन हसल और साइड हसल सबके पास हो गया है. एवरीवन इज लाइक मुझे साइड में, जैसे फॉर मी एज वेल, राइट? मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन से पैसे कमा रहा हूँ, मैं इधर बनाऊंगा, मैं इधर पैसा कमाऊंगा, मैं वेबिनार लूंगा, मैं कोचिंग क्लासेस लूंगा. एवरीवन वांट्स टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट? बट साइड हसल करने के लिए आपको मेन हसल पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. आप साइड हसल करने के चक्कर में आप यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, ठीक है? आप हर जगह आप सोचोगे कि भाई मैं इधर से पैसा कमाऊं, उधर से पैसा कमाऊं, आप कहीं से आके में पैसा नहीं कमा पाओगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड आपका मेन हसल क्या है एंड फोकस ऑन दैट. If investing is something that is not your main hustle, it's a side thing where you want to get additional income from it, आपका टाइम उसके प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट? यू कैन नॉट डिसाइड कि भाई जिससे मुझे पैसा लाइफ में मुझे वो करना नहीं है, मैं उसमें बैठ के दिन के 10 घंटे दूंगा, राइट? यू कैन स्पेंड टाइम टू लर्न,
बट डू नॉट स्पेंड आवर्स एंड आवर्स की भाई मेरा जो नुकसान हो गया, आज में 100 रुपए नुकसान हो गया, 1000 रुपए का नुकसान हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया. डू नॉट spend time thinking about that particular thing. To answer your question about how do you balance those things, identify what's your main niches, what's your main goal. आप वो गोल के अचीव करने के लिए if finance investing is something that comes as a main part of it, if it is not, invest in nifty index. आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, it will give you approximately the same return. स्पेंड टाइम टू लर्न कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो. आप 10 मिनट के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो महीने भर का. आई बीन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन आई वाज 14. ठीक है, मैं पिछले 8-9 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ. फॉर मी व्हाट आई डू इज मैं निफ्टी इंडेक्स खरीदता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द मनी दैट आई मेक. ठीक है, मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ इंडिविजुअली. आई डू नॉट बिकम स्टॉक पिकी. आई इन्वेस्ट इन इंडेक्स. इतना सीखने के बाद भी, इतना समय इन्वेस्ट करने के बाद भी, आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. आई डू नॉट पिक अ स्टॉक बिकॉज फॉर मी मेरा जो काम कंसल्टिंग वाला चल रहा है, मुझे लिंक्डइन में कोई इतनी सारी चीजें चल रही है, मेरे पास स्टॉक मार्केट में देने के लिए टाइम नहीं है. इफ आई कैन नॉट गिव टाइम टू इट, फॉर मी इट्स लाइक कि साइड में जो इंडेक्स चल रहा है आई कैन गेट दैट रिटर्न एंड दैट इज आई एम हैप्पी विद इट. सो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं है तो उसको उसके हिसाब से टाइम दो, उसके ज्यादा टाइम मत दो. Yeah, that's super relatable though, because that's precisely what I do as well. I invest in mutual funds and I try to play safe as much as possible because I can't. Totally up to your risk appetite यार. लोगों की बातें मत सुनना कि उन लोगों ने एक स्टॉक से. माय फ्रेंड ही इन्वेस्टेड 25 lakhs in one company जिसका पैसा अभी 4 करोड़ रुपए हो गया है. 25 लाख से 4 करोड़ रुपए हो गया है. एंड ही टेल्स एवरीवन की ये स्टोरी है, उसको देख के 100 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार ही हैज मेड इट, आई वांट टू मेक इट, राइट. बट उसका रिस्क एपेटाइट इज दैट पर्सन इज वर्थ 100 crore. उसके लिए 25 लाख रुपए कुछ भी नहीं है. Right. फॉर यू व्हेन यू आर वर्थ 1 crore, आपके लिए 25 लाख इज 25% ऑफ योर इनकम. तो यू नीड टू थिंक कि उनकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, बिफोर यू डिसाइड एनीथिंग, राइट. तो वो भी देख. Right. Thanks. Yeah, Well, the- I think that answers your question, Shivam. I think Dhruv had a query. You might unmute yourself. I'm audible? Yes, you're audible. तो अभी आपने जब वैभव भैया से बात की थी तो आपने एक वर्ड बोला गैम्बलिंग. ओके तो गैम्बलिंग लीगल है इलीगल है? यार, आप बेट यूएस वगैरह में जाओ वगैरह तो वहाँ पे बेट 365 हजारों कंपनीज है जो गैम्बलिंग लीगल करती है, राइट. इंडिया में आप वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप वहाँ का हो. बट इंडिया में आप देखोगे गैम्बलिंग, आई डोंट थिंक इट्स लीगल, क्योंकि यू डोंट सी अ गैम्बलिंग But- कंपनी वगैरह जो कर रही है. आप ड्रीम 11 की बात कर रहे हो अभी? हाँ हाँ. नहीं, मेरे को पता था आप गैम्बलिंग से ड्रीम 11 पे पहुंचोगे, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट टेक्निकलिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ द गवर्नमेंट लॉ थिंक्स. तो आपको पता है ना इस पे केस हुआ था कि यस 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 वही बता रहा था. तुमने जाके बताया कि इट्स अ गेम ऑफ स्किल. हाँ हाँ हाँ. So it's about how you play with the loophole and everyone knows what it is. But totally it's government and legal aspect. I cannot comment on how the government decides and the legal team decides. और अभी आपने जब शिवम भैया से बात की थी तो आपने बताया था हमें सेफ ऑप्शन में वो करना चाहिए, इन्वेस्ट इन अर्ली एजेस. नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि आप सेफ में तब इन्वेस्ट करो या आप रिस्क तब लो. आपकी रिस्क एपेटाइट इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सोसाइटी क्या बोल रही है, मार्केट क्या बोल रहा है. आपके पास अगर करोड़ों रुपए है, आपके लिए लाखों रुपए का आप कुछ भी रिस्क ले सकते हो, राइट. और आपके पास पैसे उतने हैं जिसमें आप सोचते हो कि आप इतने रुपए डालोगे तो दैट इज योर मेजर पोर्शन ऑफ योर इनकम, तब आप सोचो कि डू यू वांट टू टेक दैट रिस्क. इंसान के रिस्क एपेटाइट के ऊपर. अगर आपको वो रुपए चले गया तो आप क्या करोगे? मैं अगर 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ या 5 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, मैं पूरे रुपए गैम्बलिंग में उड़ा दूंगा. दैट इज अ रिस्की थिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे पास और कुछ सेविंग नहीं है अगर. तो फॉर मी दैट रिस्क एपेटाइट पिक्चर कम्स इनटू प्लेस. तो इंसान के ऊपर है कि हाउ डू यू वांट टू टेक रिस्क. और द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ टेकिंग रिस्क इज 20-30s, जो बोलते हैं कि दैट्स व्हेन यू कैन अर्न मोर इनकम. आप अभी रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे जीवन में? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आगे जाके भी आपको अगर राइट नाउ योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू, योर इनकम इज समथिंग दैट इज रनिंग द फैमिली. आपकी एज मैटर नहीं करेगी वो समय पे. आप 25 साल के हो और आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जाके बोल नहीं सकते कि भाई मैं अभी ये एज में रिस्क नहीं लूंगा तो कब लूंगा, तो मैं सब पूरे पैसे उठा के मैं गैम्बल करने लग जाऊं, राइट. You can't do that because personal circumstance and age will come together and then you decide what you want to do. सिर्फ आप एक चीज को एज को लेके फैक्टर नहीं ले सकते हो in terms of risk. Also ध्रुव, इसके लिए बेटर एग्जांपल होगा, आप खुद का एग्जांपल ले लो. अगर करंटली मान लो आप अचानक से डैड को बोल दो मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, विल यू गिव हिम? बताओ. नो ना. एटलीस्ट ये मान के चलो
इनडायरेक्टली वो यही बोलेंगे कि आप खुद के पैसे से ले लो, जब आप खुद कमाने लग जाओगे देन यू विल नो द वैल्यू ऑफ मनी, राइट? All right. Any more queries or doubts, guys? So that So iPhone thing let's again. proceed. Yeah, so for that iPhone thing again that Weber mentioned. So I remember जब मैं 12th स्टैंडर्ड पास किया था, तो जब iPhone 6s आया था, ठीक है, that was my first phone that I bought. तो आई टोल्ड माई डैड कि बिकॉज वो समय शो ऑफ इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि आपको फिर आपके फ्रेंड में सबसे महंगा फोन चाहिए, राइट? जब आईफोन 6s लॉन्च हुआ था, मैंने पापा को बोला, पापा मुझे 45,000 का फोन है. दैट टाइम 45,000 वाज अ बिग अमाउंट. आई वाज लाइक कि पापा मुझे चाहिए. पापा ने मुझे जाके दिला दिया. आई वाज हैप्पी. 2-4 दिन में बहुत खुश, दोस्तों को बता रहा हूँ कि आई हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन, आई हैव द बेस्ट थिंग. अब व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग गुड अमाउंट, I decided let's go and buy an iPhone 13 Pro Max. Okay. So I went to the store, Apple store. पहले दिन वापस जाके मैं वापस आ गया. आई वाज थिंकिंग यार कल लेते, आज नहीं लेते. सेकंड डे में गया, फिर से वापस आ गया. थर्ड डे में गया, मैंने उसके बोला कि अब मुझे आईफोन नहीं लेना है. बिकॉज जब इंसान जब खुद के पैसों से कमाता है ना, 1 रुपया डालने के पहले भी इंसान सोचता है कि यार नहीं करते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं 20,000 में भी काम हो रहा है, 30,000 में भी काम हो रहा है, तो इंसान उसी के हिसाब से खर्च करता है. तो इट्स लाइक जब खुद का पैसा कमाता है इंसान, तो उसके हिसाब से डिसीजंस लेता है. तो टोटली अप टू यू हाउ डू यू वांट टू डिसाइड विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट. बट think every money that you spend, think from that perspective that you are someone who is responsible for that money, and take decisions according to you. Because when you start earning, you will realize this first thing कि पैसा जब खुद के से कमाते हो, जब तुम्हें हर चीज रियलाइज होती है कि एक एक रुपए कैसे खर्च करना है, कि कैसे कैसे रुपए खर्च करना है. That is something that you learn after you start earning. All right. So that was quite a devoted discussion, and thank you, sir, for clarifying this, that skills and experience are the key, most important things. Yeah. Okay, so let's proceed to the next question. What is your opinion on these buy now, pay later schemes that have been introduced by several card merchants and e-commerce companies, especially when these companies target younger audiences for these products? Okay. So आपको मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. I was a very frequent user of Flipkart Plus. ठीक है. So they gave me a Flipkart Pay Later is the scheme that they have. आपको 10,000 रुपए की लिमिट होगी, आप कुछ भी ऑर्डर करो, अगले मंथ के 8 तारीख या 10 तारीख के पहले आपको पैसे देने हैं. ठीक है. So these people start promoting during the time of sale. ठीक है. जब सेल आएगी, जब they'll start promoting कि you can just pay the amount, they'll just force you कि आप पे कर दो, आप सिर्फ ऑर्डर कर दो, पैसे आप 1 महीने बाद दे देना. ठीक है. सो उस वजह से आई बॉट सो मेनी थिंग्स विच आई डिड नॉट इवन रिक्वायर, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बट आई वांटेड टू स्पेंड इट, क्योंकि मुझे इजी फ्रीक्वेंसी क्रेडिट मिल रहा है बिना अर्निंग के, बिना कुछ करे. दे वर जस्ट रेडी कि आप खरीद लो, आप कभी पैसे दे दो. सो अब आप मुझे बताओ, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर या कोई बाय नाउ पे लेटर कंपनीज है, किसको टारगेट करेगी इंसान? अगर आप उनको टारगेट करोगे जो बहुत ही अच्छा इनकम कमाते हैं बट बहुत ही कंजर्वेटिव है पैसा खर्च करने के लिए, या स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो अभी भी पैसा कमाना चालू करे और जो फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है कि यार अभी पैसा खर्च करना है कर लो, और उनके पास पैसे नहीं हो, बाद में फ्यूचर कमाएंगे, आप उन लोगों को मार्केट करोगे कि इट्स वेरी इजी टू कन्विंस देम टू स्पेंड, राइट? तो इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई विल टारगेट दोज कॉलेज स्टूडेंट्स जो लोग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल रहे और बस पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी उससे डिटरमिन होगी, राइट? इफ आई एम अ बाय नाउ पे लेटर कंपनी. सो नाउ यू नीड टू थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आर यू यूजिंग बाय नाउ पे लेटर फॉर बेसिक नीड्स? आपके अगर बेसिक नीड के लिए आप खर्च कर रहे हो, अगर आपके खाने ग्रोसरी वगैरह के लिए कर रहे हो, यू थिंक कि आपकी इनकम है भी उतनी कि आप उसको खर्च कर रहे हो, राइट? अगर आपको बेसिक नीड्स के लिए भी पैसे लेने पड़ रहे हैं किसी और से, उधारी में लेने पड़ रहे हैं, तो यू आर गोइंग समवेयर रॉन्ग, राइट? आपकी इनकम उतनी है ही नहीं और आप सिर्फ स्पेंड कर रहे हो बाय नाउ पे लेटर स्कीम से. सो आई फील इट्स गुड व्हेन यू आर इन अ वेरी डिसेंट अर्निंग पोजीशन कि आप अभी पैसा खर्च कर दो, बाद में पैसे दे दो. बट इट्स अ विशियस साइकिल. आपको आज 10,000 का लोन मिलेगा, आप उसको पूरा यूटिलाइज करके आप पूरा पे कर दोगे, अगले महीने आपकी क्रेडिट लिमिट और बढ़ा देंगे वो लोग, 20,000 कर देंगे, तो आप 20,000 को पूरा स्पेंड कर दोगे, फिर 50,000 कर देंगे, आप 50,000 पूरा स्पेंड कर दोगे. बट आपकी इनकम उतनी है, योर इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग, बट योर पेइंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग. दैट इज व्हाट दे विल फोकस ऑन. अगर मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कंपनी के लिए, व्हाट आई विल फोकस ऑन इज जो इंसान स्पेंड करने के लिए रेडी है, जो 100 कैपेसिटी यूज कर रहा है, मैं उसको और बेचूं, मैं उसको और क्रेडिट दूं ताकि वो और लेते जाए. उसकी इनकम से मुझे लेना देना नहीं, उसकी इनकम बढ़ते रहेगी धीरे धीरे. योर इट्स अ विशियस साइकिल टू गेट इनटू अ डेट ट्रैप. तो आपको बहुत सोच के स्पेंड करना है कि इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पेंड. इफ नॉट,
स्टे अवे फ्रॉम इट, मत करो। कोई जरूरत नहीं है कि बाय नाउ पे लेटर स्कीम जो नए नए टेक आ रहे हैं, इट्स लाइक आप बुद्धू हो, ठीक है चलेगा, आपको हर चीज जिंदगी में जानने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी चीजें पता है, आपके पास जितना है, वो सब जो हमारे पेरेंट्स, एवरीवन सेज राइट, पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर हो, राइट, एवरीवन सेज दैट। तो आपके पास उतने ही पैसे हैं तो आप उतने ही खर्च करो, जरूरी नहीं है कि आप मैं मुझे वो उधारी दे रहा है तो आई स्पेंड इट। तो just think from that perspective that you have to be financially responsible and not irresponsible. That's very important. Another thing is there's a difference between good debt and a bad debt. Good debt is something that gives you, आप उसके लिए लोन लोगे तो उससे आपको रिटर्न में मिल रहा है, and it's something that is serving a purpose for you. If you are getting a return out of it. Another loan is a bad debt. आपको आईफोन खरीदना है, उसके लिए आपने लोन ले लिया। आपको टीवी खरीदना है, आपका एक्सपेंस है, उसके लिए आपने लोन ले लिया। आपको कार खरीदने का शौक आया, आपके पास इनकम 1 लाख रुपए महीने कमाते हो, आपको लेना है BMW, उसके लिए आपने लोन ले लिया कि मैं 80,000 रुपए उस पर दे दूंगा, 5 साल में तो कार मेरी फ्री हो जाएगी। दैट इज अ बैड डेट। तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज अ गुड डेट फॉर यू, व्हाट इज अ बैड डेट फॉर यू, एंड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो बिजनेस को ट्रिक करना है, उन लोगों का काम है आपको ट्रिक करना। फॉर यू इट्स अप टू यू, हाउ डू यू सेव योरसेल्फ कि मुझे उस चीज में नहीं फंसना है। फॉर मी, मैं अपने इनकम और अपने एक्सपेंस से कंफर्टेबल हूँ। आई एम टोटली केपेबल ऑफ स्पेंडिंग ओनली दिस पर्टिकुलर अमाउंट, मैं उतना ही करूंगा, मुझे और नहीं करना। सो दैट इज माय बिट ऑन BNPL schemes. ट्रू प्रणय एक्चुअली, स्पेशली द लग्जरी कार का एग्जांपल जो दिया आपने, वो भी एक्चुअली बहुत वेरीफाई क्लियर एज वेल एज सिंप्लीफाइड है। रिसेंटली अभी मेरे सर्कल में कज़न भाई ने लग्जरी कार ब्रॉट करी थी, दैट वाज अराउंड 70 लाख समथिंग, एंड द मोमेंट ही बॉट ही सेड he will sell it out within 2 years, and मेजरली उन्होंने यही कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली जब मैं सेल करूंगा इसे, एटलीस्ट उनको मान के चलो कि 30% डिप्रिसिएशन देखना ही पड़ेगा। एंड व्हेन ही टॉक्ड इट आउट with a salesman specifically, as well as some owners of luxury cars previous, they said the moment तुम कार को शोरूम से बाहर ले जाते हो ना, that उसके first बाद kilometer or even the first mile of that, वो अप्रॉक्सीमेटली 15% अपनी वैल्यू उसी टाइम डेप्रिशिएट कर चुकी होती है। ट्रू ट्रू। तो आपको खुद को सोचना है कि आर यू केपेबल। आप लोग अगर करोड़ों रुपए कमा रहे हो, आपके लिए खर्च, आई एम नॉट से, आई एम टोटली अप फॉर स्मॉल जॉयज ऑफ योर लाइफ। इफ इट्स अ जॉय फॉर यू, यू शुड डू, but you should be financially responsible कि are you capable to do it for you, what's something more important for you। आपके जो मेन 4 एक्सपेंस आपके सॉर्ट हो चुके हैं, child's education, your education, your marriage, your retirement and everyone, घर अगर आपके पास है, रोटी कपड़ा सब कुछ है, उसके बाद आपको जहाँ करना है खर्च करो। for you it's your life, right? एक ही लाइफ है, सब लोग, everyone thinks कि you want to live today, आपसे पैसा बचा बचा करके क्या कर लोगे, राइट? अगर आप, what I do personally is every month I go to a different location। For the last 18 months I've been going to a different city every month। हर महीने में 4 दिन अपने लिए निकालता हूँ, where I switch off my phone, switch off everything। I spend a percentage of my income on travel। I go to Himachal, recently I went to Himachal, मैं मनाली जा रहा हूँ, मैं शिमला गया, मैं कसौल गया, मैं खीरगंगा गया। So every month I'll go to a different place। 4 दिन के लिए I want to spend time with myself, explore things। क्योंकि पैसा 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 करके आप क्या कर लोगे if you don't enjoy life, right? तो for you also, you think कि you are at such a stage where आप 3,000 रुपए में भी ट्रिप कर सकते हो, 10,000 में भी ट्रिप कर सकते हो, 1 करोड़ में भी आप ट्रिप कर सकते हो, लाख रुपए में भी ट्रिप कर सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू स्पेंड इट। आप अपने इनकम का एक प्रोपोर्शन रखो। इफ ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू, डू इट, एंजॉय योर लाइफ। इट्स नॉट लाइक कि आपसे पैसा बचा बचा के सब कुछ नहीं कर सकते हो। आप कोविड के समय लोगों ने बहुत पैसा बचाया, कोविड के पहले लोगों ने करोड़ों रुपए रखे हैं अपने पास। कोविड में दे वर हेल्पलेस, उसके बाद उनकी लाइफ क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। जो उनके रिलेटिव्स है उनको बचा भी नहीं पाए, करोड़ों रुपए उनके पास रह गए। So for you, if you're not enjoying your life, that is a serious concern कि you should have fun wherever you want to, but not at the cost कि आपका future बहुत खतरे में आ जाए। It should be a balance of things where you decide कि ठीक है, महीने में 3 दिन I feel मुझे जाना है, I'll do। मुझे I feel cricket is something that I really love, मैं competition में जाऊंगा, मुझे खेलना है, मैं खेलूंगा, I'll devote a particular time to it, I'll spend on my resources। That is one thing that gives you joy। So spend on something that gives joy to you rather than spending on something that gives a फैंसी आउटलुक कि भाई लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ, सो आई बाय समथिंग रियली एक्सपेंसिव, मैं एप्पल वॉच ही पहनूंगा, मैं नॉर्मल वॉच नहीं पहनूंगा। इट्स अप टू यू, इफ यू अर्न दैट मच इट्स अ जॉय फॉर यू, इफ यू डू नॉट अर्न दैट्स अ कंसर्न फॉर यू। आपको वो देखना है कि आपके इनकम के हिसाब से आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए। या
All right, Weber, does that give an answer to your question? Yeah, absolutely. Okay, so Shivam had a query. Just Shivam, you might unmute yourself and ask. Yeah, more than a query, it's a continuation of what just Webber said. So Webber ने जो example दिया कार वाला, luxury car वाला, तो so on that, is it safe to say that automobile में या cars में invest करना is not a safer bet? तो एक एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि अब रात को 2 बजे आपकी फैमिली में, मतलब नॉट सेइंग टू यू, ठीक है, Yeah, आप yeah. हैं, आप बैठे हो, रात को 2 बजे आपके घर में इमरजेंसी आती है, वो समय आप उबर बुक करने बैठे हो, ठीक है, Right. उबर बुक नहीं होगी, वो इंसान वही के वही चले गया, Yeah, yeah. तब आप फाइनेंशियल लॉजिक ढूंढोगे कि मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट करे होते, मैंने ये कार नहीं ली होती तो मेरे पास पैसे होते। अब पॉइंट ये है कि फॉर यू इट्स लाइक, अगर आपकी वो नेसेसिटी है, आपके घर में अगर एक कार होनी चाहिए, आप छोटी कार ले लो या जो भी है, फॉर यू, फॉर योर इनकम अर्निंग आपकी जो है, आप महंगी कार मत लो, आप छोटी कार लो, बट इफ इट सर्व्स अ पर्पस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास रहे। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते रात को 2 बजे की यार मैं पैसे बचाने थे, मैंने इसलिए स्टॉक्स ले लिया, मैंने कार नहीं ली इसलिए आप चले गए, राइट? तो फॉर यू इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करो व्हेन यू हैव डिसेंट इनकम, इफ यू इवन इफ यू कैन नॉट बाय इट। आप, अगर आपको लग रहा है कि आप 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, आप उसका 20% 30% ऑफ योर इनकम यू कैन स्पेंड ऑन अ कार, एंड यू फील यू हैव इनफ कॉर्पस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, आप कार खरीद सकते हो, तो यू शुड बाय, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी। आपके घर में अगर कार नहीं है, इफ यू फील लाइक मुझे कार चाहिए, तो दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। बट आपकी अगर लग्जरी है तो आप इनकम लेवल और योर स्टेटस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिटरमाइन व्हाटएवर यू वांट टू डू। या बट वही लग्जरी कार वाले एग्जांपल पे अब वही सेम सिचुएशन में हम रात के 2 बजे हैं और हाँ, मेरे घर के नीचे एक फरारी खड़ी हुई है हाँ, एंड मैं हॉस्पिटल में लग्जरी कार के लिए तो अगेन इट्स, See लग्जरी that कार इंसान तभी खरीदता है ना जब उसके पास पैसा हो, राइट? exactly so आप 50 लाख की कार, 1 करोड़ की कार कब खरीदोगे? जब आपके पास बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हो या 5 करोड़ रुपए हो, right? So yeah I have seen this trend in Punjab, Delhi, that people have 80 lakh in their bank account, but they'll buy something for 1 crore. उनको it's like कि right now they feel कि भाई पैसा आ ही जाएगा क्योंकि I am earning every month, so I'll spend it right now. बट yeah आप ये थोड़े से बनिया फैमिली, मारवाड़ी फैमिली, गुजराती फैमिली अगर में देखोगे, दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। बहुत सोचते हैं कि मेरे पास, और उनका कभी पूछोगे ना आपका धंधा कैसा चल रहा है, दिल से कि यार बहुत खराब चल रहा है, बहुत मंदा है, ऐसा ही नहीं है हमारे पास, राइट? सो दैट कम्स नेचुरली बिकॉज दे फील कि फॉर देम दे नीड टू हैव एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स ऑफ देयर सेविंग्स उनको स्पेंड करने के पहले। दैट्स व्हाई यू वुड सी 45 like close 42% of the billionaires are Marwadi in India, ठीक है? Again 50% of the startup founders are Marwadi in India. It's not because Marwadis ने कुछ अलग किया है और Gujaratis ने कुछ अलग किया है। 50% of, like 40 to 50% of hotels in US are owned by Gujaratis, right? तो आप वो देखो कि इंसान बिजनेस एक्यूमेन वगैरह ये चीज बचपन से इंसान सीखते आ रहा है, आपको सीखना है, वो तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप कार खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, यू हैव इनफ इनकम। आप डिसीजन लेने के पहले बहुत सोचो कि आर यू फाइनेंशियली साउंड। आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि भाई आप पैसा लाइफ में लग्जरी कार खरीदो ही मत, मेरा भी विश है कि मैं खरीदूं लग्जरी कार, बट उतना पैसा हो तब खरीदूं। अगर उतना पैसा नहीं है तो मैं अभी से जाके नहीं खरीद सकता कि बस अकाउंट में 1 करोड़ है, मैं जाके 1 करोड़ की कार खरीद के आ रहा हूँ। yeah and well that's the reason why we call them luxury cars right डेफिनेटली इट्स अ वांट नॉट अ नीड। yes नीड exactly पूरी हो गई तो फिर उसके बाद वांट पे जाओ। yeah एक्चुअली totally ऑल्सो मारवाड़ी गुजराती लग्जरी कार नहीं खरीदते हैं वो लग्जरी कार के स्टॉक्स खरीदते हैं। वो तो अलग चीज है, टोटली डिपेंड्स, उसमें क्या कर सकते हो। वो आप एनफील्ड वाला किस्सा सुने होगे, हाँ हाँ अगर आयशर। एनफील्ड के शेयर, रॉयल एनफील्ड के शेयर आयशर मोटर खरीद लेते तो आपके पास अभी कार होती। या तो उस हिसाब से इंसान अगर खाना छोड़ देता तो जोमेटो के शेयर्स में बहुत बड़ा स्टेक होता। उस हिसाब और से इवन इंसान अडानी। नहीं, सब कुछ है, आप जीवन में सब कुछ छोड़ देते, कोयला के वो आग जगाने की जगह आप कोयला में अडानी कोल खरीद लेते, अडानी गैस खरीद लेते, तो आप अभी मिलियनर होते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नेसेसिटी छोड़ के आप वो खरीद रहे हो, right बट इट्स लाइक अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ये बातें कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास लिमिटेड इनकम है स्पेंड करने के लिए, वो लोग को आप ज्ञान बांटोगे कोई पॉइंट नहीं है। उनके लिए अलग, हर इंसान की सर्कमस्टांस अलग है, तो ऑल दीज थिंग्स डू नॉट अप्लाई टू देम। yeah All right. Dhruv had a query. You might unmute yourself. Please. हाँ, तो भैया आपने जैसे अभी बताया जेन जी जो जनरेशन है वो बाय नाउ पे लेटर करती है मोस्ट ऑफ। जैसे क्रेडिट कार्ड जो होता है
हम्म, जैसे SBI का एग्जांपल ले लेते हैं, SBI प्लेटिनम कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड, हम्म। उसके साथ हमें कुछ वो भी तो मिलते हैं, रिवॉर्ड्स। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप रिवॉर्ड के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट तो मिल रहे हैं, ठीक है, बट आप मुझे बताओ, इंडिया में अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, द कंपनीज हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग द रिवॉर्ड पर। इंडिया में लोग एक्सप्लॉइट करते हैं रिवॉर्ड को। क्या करते हैं, रेंटल भरना है, जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड से भर देंगे, क्योंकि रेंट तो भरना ही है उनको कैसे भी करके। बट ऐसे एक्सपेंसेस लोग इंडिया में इतना ऐसे करने लगे कि वो पैसा भी रिवॉर्ड करें, जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज आर नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट, सो दे हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग रिवॉर्ड। बट इफ यू लुक एट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट, इट्स अपवर्ड्स ऑफ 30%, 30% से ऊपर इंटरेस्ट रेट है साल का। सो आप पेनल्टी, आप जो पेमेंट करने जा रहे हैं आपकी मिस हो गई, तो आपका पेमेंट का पेनल्टी लगेगी। आपका जो साल भर का रिवॉर्ड है, उन लोगों का बिजनेस है पैसे कमाना आपसे, ना कि आपको पैसे बांटना। जस्ट थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि आपको अगर रिवॉर्ड से फायदा हो रहा है, आखिरी में किसको फायदा होगा? क्योंकि आपको वो आदत ऐसी लगा देंगे कि आप हर महीने स्पेंड करोगे, आपकी इनकम अगर एक्स अमाउंट है, आप उसका 50% स्पेंड करोगे, अगले महीने 70% करोगे, फिर 80% करोगे। एक बार इट्स अ विशियस साइकिल, वंस यू गेट यूज टू इट। जैसे इंसान, इंटरनेट था पहले 500 MB में मैं पूरा महीना चला लेता था, अब 1.5 GB में मेरा दिन का कम हो जाता है, मुझे लगता है 1.5 GB में क्या ही होगा दिन का, राइट? क्योंकि अब मुझे आदत लगी उस चीज की। अब क्रेडिट कार्ड है, आप 50,000 रुपए स्पेंड करके आप बोलते हो महीने का निकाल सकता हूँ खर्चा, फिर थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि यार 1 लाख में मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा 2 लाख में कुछ नहीं हो रहा है। एक बार ऐसा सिचुएशन आई है यूएस में, इफ यू सी 90% of people who earn more than I was reading a stat, I don't remember the exact percentage, but majority of people earning more than 80 lakh rupees per year, that is $100,000 in a year, they do not have any money in their savings account. They are living on debt. वो लोग क्रेडिट कार्ड के भरोसे जी रहे हैं। तो imagine when this culture comes to India, when people do not earn, they spend more in terms of credit card. You think whether you will be in a position to pay, आपका savings ही नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ आदत लग जाएगी एक बार की। तो रिवॉर्ड्स आर सेकेंडरी, आप रिवॉर्ड के लिए जा रहे हो, इफ यू कैन मैनेज इट, आप अगर आपके पे कंट्रोल है कि मैं इतना ही स्पेंड करूंगा, तो जाओ बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड से अच्छी कोई चीज नहीं, फ्री में आप फ्लाइट्स लो, फ्री में आप होटल्स जाओ, सब कुछ आप फ्री में ले सकते हो। बट इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर स्पेंडिंग, जो सब लोग बोलते हैं मैं बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ, आई हैव इनफ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, बट जब करने जाते हैं तब आदत बिगड़ जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि रिवॉर्ड्स के भरोसे में अपनी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं होने दें। और एक ऊपर और से जैसे ध्रुव, आपने, हाँ, स्पेसिफिकली जैसा आपने कहा ना, मेंशन करा एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स, वन थिंग जो आपने मिस कर दी ना, वो होती है एमडीआर, दैट मार्जिनल डिस्काउंट रेट। ठीक है, यू वोंट नो द डिफरेंस जब तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट ऑन दी बैक साइड ना, क्रेडिट कार्ड मर्चेंट्स जो होते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए अपनी कमीशन काटते हैं, एंड दैट इज एमडीआर। यू थिंक, तुम्हें लगता है कि रिवॉर्ड से तुम्हें फायदा मिल रहा है, बट ऑन दी बैक एंड कंपनी नो कि तुम दे यू आर एक्चुअली तुम ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो फॉर अटेंडिंग द सेम सर्विसेज अगर तुम क्रेडिट कार्ड ना यूज़ करते। ओके, तो मेरा नेक्स्ट था वो जो एक्सपेंसिव कार्स वाला आया था। तो आपने बताया अगर नेसेसरी है तो एक ले लो, छोटी भी ले सकते हो। बाकी शिवम मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर अगर सब कार खरीदना बंद कर देंगे, या फिर जैसे कार कम ले, एक्सपेंसिव वाले ना लें, नॉर्मल लें, तो स्टॉक्स प्राइस पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पर स्टॉक्स पे तो वो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि उबर और ओला जैसी कंपनी आई गई है, तो वो कार तो खरीदेंगे अपने ड्राइवर्स के लिए। अब द पॉइंट इज, आप उबर ओला तो आ गया है, अब कोविड भी आ गया था। कोविड के हाँ, समय पे लोग सोशल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए 100 बार सोच रहे थे, तो सबने सोचा कि अपने कार खरीद लेते हैं, राइट? लोगों ने वो भी किया। तो मार्केट सिनेरियोस तो हर समय चेंज होते जाएंगे, किसी के सपोर्ट में आएंगे, किसी के नेगेटिव आएंगे, हेडविंड्स आएंगी, टेलविंड्स आएंगी, एवरीथिंग विल कम, राइट? फॉर यू एज अ इन्वेस्टर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फॉर यू एज अ बायर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपके लिए कार खरीदना आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप अपना रीजन सोचोगे। इन्वेस्ट करने का रीजन आप सोचोगे कि इंडिया में क्या सिनेरियो है, कंपनी के पोटेंशियल क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट यू विल लुक एट। तो दोनों का आप कंफ्यूज मत करो कि इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, आप पर्सनल इंसान के लिए करना चाहिए, आप किस तरीके से आप खरीद रहे हो, आप बायर के रिस्पेक्टिव से खरीद रहे हो या इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू थिंक। और एक और जैसे अभी ये हो गया, कार का हो गया, बायनो हो गया, हाँ, ठीक है, क्लियर। Okay. So, since everybody's clarified with their doubts, I'd like to proceed further. As college students, what advice will you give to us who will be starting to earn within the next 6 months? Okay, so I'll tell you from my perspective, I started earning
4 साल पहले when I moved to the job sector, उसके पहले I was earning a bit बाकी चीज़ों से, internship. I was in college, I was doing 3 internships at once. तो मैं जो भी expense आता था, I used to spend from that. I started earning अभी from 2019 से मैंने job चालू किया, 2022, 3.5 years. What I've learned is एक बार इंसान को पैसा मिलना चालू हो जाता है, everyone starts getting arrogant. ठीक है, फॉर यू, जैसे मेरे को जब पहला पैसा आया था, मैंने घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदे. एवरीवन डज, राइट? सबसे पहली इनकम होती है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदो, डायमंड रिंग खरीदो, फोन खरीदो, व्हाटएवर यू वांट टू गिव टू देम, राइट? सेकेंड मंथ से यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ, थोड़ा बेट, थोड़ा 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 थोड़ा, देन यू स्टार्ट थोड़े 6-8 महीने बाद आप पैसा करना चालू कर देते हो. 1 साल के बाद व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग दैट डोपामाइन हिट कि हर महीने के पहले तारीख आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है. ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैंने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैं एरोगेंट बन जाता हूँ, मैं घर वालों को बोलूंगा कि भाई पैसा तो मैं भी कमा सकता हूँ, आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा मेरा जो खर्चा है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर चेंज, आप पैसा डू नॉट लेट इट अफेक्ट योर कैरेक्टर. की पैसा आपने कमा लिया तो यू आर अबव पीपल, आप जो कमा रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा बाकी लोग कमाते होंगे, बाकी लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे. सो यू आर जस्ट अ मेट्रिक, यू आर जस्ट अ स्मॉल बबल, मतलब आप एक ड्रॉप हो इन द ओशन. तो डू नॉट बिकम एरोगेंट कि आपके पास बहुत पैसा है. एंड in the initial part of your year, when abhi currently I'm preparing for my MBA, where I'm trying to go for my MBA, trying to save money for my MBA, and मेरा ये aim है, मैं I am earning more than people who earn in an MBA from India. I am very college से जो पैसा कमा रहे हैं, I am earning the similar amount. But do you think कि I should not do my MBA? मैं छोड़ दूँ, पैसा तो आते रहेगा. It's like I was talking to a very senior guy in my family, तो उनने मुझे बोला कि सिर्फ ग्रेजुएशन की बेसिस पे ये मत खुश हो जाना कि भाई डिग्री आ गई, सब कुछ हो गया और सब कुछ है. बट व्हेन यू मूव टू 30-35 ईयर्स ऑफ एज, जब आपकी प्रमोशन की बारी आएगी वीपी वगैरह बनने के लिए, आप कितना भी बोल दो, मैं कितना भी आपको बोल दो कि डिग्रीज डू नॉट मैटर, डिग्रीज डू नॉट मैटर, बट एकेडमिक्स डिग्रीज डू मैटर. आपको एंट्री लेवल जॉब में आप जब देखोगे ना शॉर्टलिस्ट करते वक्त, आपके सामने अगर आप सीए है और आपकी जगह आप नॉर्मल डिग्री बीकॉम की डिग्री आपके पास, आप खुद बताओ आप किसको चूज करोगे? दोनों सेम पोजीशन के लिए आप चूज कर रहे हो, एक के पास सीए की डिग्री, एक के पास बीकॉम की डिग्री है, राइट? यू विल डेफिनेटली फोकस ऑन सीए की, भाई इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं. आपकी सॉफ्ट स्किल जब भी पता चलेगी जब आपको वो पर्सनली जानते हैं नहीं, पर आपकी वो शॉर्टलिस्ट स्टेज ही नहीं पहुंचेगी, तो आप सॉफ्ट स्किल दिखाओगे कैसे, राइट? फॉर यू बहुत सारी चीजों में दीज आर नॉन नेगोशिएबल की ग्रेजुएशन डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग सब लोग कर रहे हैं, राइट? बीटेक वगैरह जो भी कर रहे हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. बट इसके बाद द लर्निंग नेवर स्टॉप्स. सॉफ्ट स्किल सीखो, आपके जो कोर्सेज वगैरह जो एवरी टाइम यू हैव टू अपडेट इट, क्योंकि आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हो. आज के आज आपको निकाल देंगे, जैसे आप देख रहे होंगे टेक ले ऑफ, Amazon निकाल रहा है, गूगल निकाल रहा है. गूगल जैसी कंपनी, गूगल में 100 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें एक जन को सिलेक्ट करते हैं. अब वो एक जन जो सिलेक्ट हुआ है उसमें से आपको वो निकाल रहे हैं ये बोल के कि आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो. तो कैन यू इमेजिन कि वो इंसान जो इतना हार्डवर्क करके इतना कुछ करके, दैट पर्सन जो गूगल में है, who has MIT, Sloan, बड़े बड़े कॉलेज की डिग्री है, टॉप डिग्रीज, he is getting fired. So everyone can get fired, everyone is replaceable. So you need to be always on top of your game in terms of skills. तो skills is something initial phase में तो कभी अपने skill को compromise करना ही मत. पैसा आते रहेगा, do not get complacent कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा आएगा जाएगा, that is part and parcel. For you learning should never stop. आपको MBA करना है, आपको ग्रेजुएशन MD करना है, MS करना है, जो करना है आप उसकी तैयारी करो, पढ़ाई करते रहो साथ में जो भी कर रहे हो. बट इफ यू फील कि आपको आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं, इट्स टोटली योर कॉल. बट लर्निंग शुड नेवर स्टॉप कि जस्ट थिंकिंग कि भाई पैसा आ रहा है, अब मुझे इसमें करियर में ग्रो करते जाऊंगा, एक्सपीरियंस लेते जाऊंगा, मुझे पैसा नहीं कमाना है, वो नहीं करना है. तो डू नॉट पैसा कमा लेने के बाद ये गलती मत करना कि अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, हो गया है बस, अब हर महीने के 1 लाख रुपए आ रहे हैं, हर महीने के 50,000 रुपए आ रहे हैं, बस चलने दो घर, मेरा सब जो करना था मुझे कर पा रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो उसी के भरोसे मत रहना कि if you have ambitions in life, if you want to achieve multiple things, जैसे लग्जरी कार खरीदना है, वो आपकी ये अर्निंग से धीरे धीरे करे, बिना ग्रो करे आप नहीं कमा सकते हो. आप BMW तक पहुंचना है, आपको रोल्स रॉयस तक पहुंचना है, तो you have to continuously spend time, continuously focus on your improvement. So that is my bit on this particular thing. Also, Okay, that was quite thoughtful, sir. Vaibhav has a doubt. Vaibhav? yeah, Pranay, I just want to ask one thing. Income से I don't think every time सारे ambitions जो हैं वो just because कमा रहे हो उससे fulfill हो जाते हैं. There are some kind of ambitions जो कि long term के होते हैं and certainly वो सिर्फ income से जो आपकी कह रहे हो active income specifically
उससे स्पेसिफाई नहीं होते। ट्रू ट्रू, डेफिनेटली। लाइक हर इंसान के एम्बिशन अलग होते हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, हर इंसान के गोल अलग है। जैसे आप मुझे बताओ, अश्नीर ग्रोवर को तो आप देख ही रहे होगे, राइट? अश्नीर ग्रोवर के या एम्बिशन लाइफ में भी क्या है? पैसा चाहिए उसे? उसे लाइफ में पैसा चाहिए? अब नहीं चाहिए, उसे नो, चाहिए फेम, राइट? फॉर हिम फेम इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। तो हर इंसान के अलग अलग गोल्स है, डिपेंडिंग ऑन, आपने मैस्लोज 5 हायरार्की सुनी होगी, राइट? एक बेसिक नीड चाहिए सबको, पहला वो फुलफिल करना है, देन सोशल नीड्स वगैरह में पहुंचो कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, शादी हो वगैरह, वो सब हो, पीपल नो हिम वगैरह चीज के लिए। देन आखिरी में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो इंसान का पर्पस क्या है लाइफ में वो, एंड उसके पहले होता है रिकॉग्निशन वगैरह जो चाहिए। सो अश्नीर, दैट एवरीवन इज एट सच अ स्टेज कि यू मूव अक्रॉस दिस हायरार्की, एंड आपको डिटरमिन करना है कि व्हाट्स योर गोल, व्हाट यू फील लाइक, एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको क्या एम्बिशन है। एंड पैसा ही सब कुछ आपके लिए है या पैसा नहीं है? इफ यू आर सेटिस्फाइड, जैसा आपको मैंने बताया था, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ यू फील लाइफ में पैसा आपके लिए, जो आपको 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो, यू आर सेटिस्फाइड, आपका घर चल रहा है, तो अच्छी बात है। यू डोंट हैव टू रश, क्योंकि इंसान कमाते रहेगा जिंदगी में। आप 1 करोड़ कमाओगे, आप 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ करोगे, 5 करोड़ चाहिए, आपको बढ़ते रहेगा, बट यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डू। तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट, गुड विद, इट्स रियली ग्रेट विद इट। बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव कि डू नॉट बिकम कंप्लेसेंट कि आपके पास पैसे आ गए हैं मतलब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आपने, आप बता रहा हूँ, आपको जितना लग रहा है कि आपके लिए जो पैसे कमा रहे हो, यू आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। आपको पता भी नहीं होगा जितना आप, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग इंजीनियर करके 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई कोई लोग डांस करके 1 मिनट के रील में उतने रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? तो यू डोंट नो हाउ मच पीपल, एवरीवन इज अर्निंग। अगर पैसा एक मेट्रिक है तो डोंट बिकम वेरी कंप्लेसेंट कि भाई बहुत पैसा है, बट उसके अलावा भी आप लाइफ जियो, और उसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई फील। या ध्रुव? That was amazing. Dhruv has a doubt. Dhruv? हाँ भैया, आपने जैसे भी बात की थी रिसेशन की, जो टेक रिसेशन चल रहा है अभी, आप बोले ले ऑफ कर रहे हैं, पर वो ले ऑफ नहीं कर रहे एक तरह से। देखा जाए तो पास्ट 2 इयर्स में एक बबल हुआ था कि टैक्स रिलेटेड हो जाएगा सब कुछ, पर बाद में अभी पेंडेमिक के बाद सब नॉर्मल होने लग गया। तो जो पहले एम्प्लॉय थे उससे तो ज्यादा ही रह रहे हैं अभी भी, तो रिसेशन एक तरह से नहीं है। ओके, तो पॉइंट ये है कि रिसेशन का डेफिनेशन क्या है? फॉर द रिसेशन का डेफिनेशन है, अगर आप 2 क्वार्टर कंटिन्यूस नेगेटिव ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, दैट इज अ रिसेशन, ठीक है? उसके पहले ग्रो कितना हुआ वो मैटर नहीं करता, राइट? आपने अगर, आप 1 लाख रुपए कमाते थे, आप अगर 3 साल बाद आप वो 2 लाख रुपए पे आ गए हो, अब 2 लाख से आप सीधा वापस 50,000 में पहुंच गए हो, तो आप पहले जो 10,000 कमाते थे उससे 50,000 तो बहुत ही बढ़िया आपने कर लिया, आप तो ग्रो कर गए हो कि आपने 5 गुना कमाते थे। बट क्या आप 2 लाख रुपए से 50,000 पे आए, तो इज इट अ गुड थिंग फॉर यू, इज माई क्वेश्चन। इकोनॉमी से, गुड तो नहीं है, गुड तो कंपनी नहीं के है। लिए भी अब अमेजोन गूगल वगैरह के आप बता दो, दे वर ग्रोइंग, दैट्स व्हाई दे वर हायरिंग पीपल, राइट? अब उन लोगों ने फायर किया बिकॉज दे सी, क्योंकि इन्वेस्टर प्रेशर्स होते हैं, दे वांट टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, दे वांट टू रिड्यूस एक्सपेंसेस जो भी होंगे, जहाँ पे उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव एम्प्लॉइज लाए होंगे, नॉन परफॉर्मर्स होंगे, उनको हटाना है वो हटा रहे होंगे। सो दैट इज वन थिंग, बट एवरी, व्हाई आर दे टेकिंग दिस प्रिकॉशन? बिकॉज दे फील कि मार्केट में डिमांड कम होने वाली है प्रोडक्ट की, द स्पेंडिंग पावर ऑफ पीपल इज गोइंग टू रिड्यूस। तो इंडिया में आप देखोगे, इंडिया इज सच एन इकोनॉमी दैट इज मोर लाइक रिसेशन प्रूफ, एवरीवन इज सेइंग रिसेशन प्रूफ है, ऑब्वियसली रिसेशन प्रूफ इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया में डेवलपिंग इकोनॉमी हम इतने सालों से बोलते हुए आ रहे हैं, हर इकोनॉमी में जो बाकी कंट्रीज में जो चीजें नहीं हो रही है, इंडिया इज वेरी गुड एट गिविंग इट, राइट? जैसे टेक की चीजें हैं, इंडिया, इंडियंस आर रियली गुड एट टेक, तो टेक में आप इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। फाइनेंस वाले एस्पेक्ट में भी कोई कोई चीजें, जो स्पाइसेस है, जो कमोडिटीज है, उसमें इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें इंडिया इज नंबर वन, इंडिया इज ग्रेट। So that I think can be talked about in a different aspect. But this recession, everyone is saying recession is coming because they have a data point to it. Economists, they have spent hours and years to determine कि recession कब आता है. But again, there's a saying कि economists have predicted 13 out of the last 2 recessions. ठीक है? So उन लोग ने 13 बार प्रेडिक्ट किया, उसमें से 2 ही बार गए। तो इसके बाद वो भी गलत हो सकते हैं, वो भी सही हो सकते हैं। तो it's for you, if you feel कि recession नहीं आ रहा है, totally your call. But the GDP numbers, economy numbers, everything predicts कि recession is coming where spending is being reduced by corporates. So that is what is happening right now. ओके, और जैसे आपने बोला कि मन एक बार हम ग्रेजुएशन के बाद मनी अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर मनी स्टार्ट नहीं, जैसे अर्न कर ली तो आप अपने को मानो मत, आपकी मर्जी आगे जो स्टडी करनी है नहीं करनी। तो लाइक जैसे बीटेक कर ली मैंने, अब मैं एमबीए करूँ या एमएस करूँ, पर Yeah, आपका अगर मैं point. एमबीए की जगह Yeah. एमबीए की जगह
अपना खुद का 2 साल स्टार्टअप पे वर्क करूंगा, तो वो एमबीए की डिग्री से तो ज्यादा वर्थ इट होगा ना वो एक्सपीरियंस। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, हर इंसान के लिए अलग अलग गोल होते हैं। किसी को जॉब करना होता है लाइफ में, किसी को बिजनेस करना होता है लाइफ में, राइट? अगर मुझे लाइफ में बिजनेस करना है तो एमबीए से भी मैं बहुत चीजें सीख सकता हूँ। कल मैं एक चीज पढ़ रहा था कि अब आपको मैं बताऊंगा बाद में 2 मिनट बाद, बट एमबीए और इस चीज का बिजनेस वाला डिपेंड्स ऑन योर गोल। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मनाली में अभी अपना खुद का ग्रीन गेबल्स नाम का, गेबल्स 14 नाम की होम स्टे चालू किया है, ठीक है, होटल चालू करी है। उसने पापा से जो 30 लाख रुपए एमबीए के थे, उसने एमबीए में नहीं लगाया। उसने बोला मैं 2 साल रुपए 30 लाख रुपए इसमें डुबाऊंगा, बट मैं 2 साल में इसमें सीखूंगा बिजनेस कैसे रन करते हैं, उसके बाद से मैं पैसा कमाना चालू करूंगा। उसका पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा इंसान है जो जॉब के लिए गया है 25 लाख रुपए खर्च करके, आईएसबी जा रहा है 45 लाख रुपए खर्च कर रहा है। सो हर इंसान की गोल अलग है। किसी को जॉब करना है, किसी का बिजनेस करना है, किसी का एक्यूमेन उस रिलेटेड है, किसी का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है मुझे बिजनेस में एक्सपर्ट हूं मैं, राइट? तो वो उस पर्सपेक्टिव से सोचता है। बट यू नीड टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि व्हाट आर यू एमिंग फॉर। अगर आपको जॉब नहीं करना है आगे जाके, तो आप स्टार्टअप आपके लिए मोर इंपैक्टफुल है। बट आपको जॉब करना है एंड यू थिंक कनेक्शन इज समथिंग दैट यू कैन बिल्ड फ्रॉम एन एमबीए। हर इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बिजनेस में आप कनेक्शंस बना सकते हो, बट एमबीए में भी आप कनेक्शंस बना सकते हो। बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हो, एमबीए में भी आप पैसा कमा सकते हो। कोई कोई बिजनेसेस फेल भी होते हैं। 100 में से आप 2 बिजनेसेस सक्सीड होंगे, 98 फेल हो रहे हैं। बट एमबीए में 100 में से 98 पास हो रहे हैं, 2 फेल हो रहे हैं, राइट? तो अप टू यू इन टर्म्स ऑफ कितना आपको रिस्क लेना है, कितना आपको बिजनेस करना है, व्हाट्स योर बिजनेस पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज, कैसा है, उसके हिसाब से डिसीजन होने चाहिए, ना कि लोगों क्या लगता है। कमिंग टू द आयुष शुक्ला देयर इज अनदर फाइनेंस क्रिएटर। उसने ट्वीट किया था कि इज इट वर्थ टू स्पेंड सो मच फॉर एन एमबीए? 45 लाख रुपए मैं डालू, इससे अच्छा मैं अगर इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता तो मैं 3 करोड़ रुपए कमा लेता बाय द एज ऑफ 40। तो मैं उसमें इन्वेस्ट क्यों करूं? मैं 10 लाख रुपए उसमें डाल दूं, राइट? माय क्वेश्चन इज कि 3 करोड़ रुपए 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू है? सेकेंडली, आपके पास 10 लाख रुपए अगर अभी है, तो आप एमबीए में स्किल अगर आपको मिल रही है, जॉब करें, आपको क्या लगता है आपसे 25 लाख रुपए साल के कमाओगे? आप धीरे धीरे ग्रो करके आप उससे अभी कमा सकते हो। एंड 3 करोड़ रुपए इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग एंड व्हेन यू बिकम वेरी बिग। आपको लगेगा 3 करोड़ रुपए भी कुछ नहीं है 20 साल बाद, ठीक है? जैसे अभी आपको 10 लाख रुपए कुछ नहीं लगते, उस तरह 4 करोड़ रुपए भी आपको 10 साल 20 साल बाद नहीं लगेंगे। तो एमबीए इज नॉट रिप्लेसेबल बाय स्टॉक इन्वेस्टमेंट। आप उसके भरोसे मत जाओ। इट्स अ वेरी फूलिश स्टेटमेंट टू मेक बिकॉज इट गिव्स लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि वो भी वायरल होगा उस वजह से। पीपल डू थिंग्स फॉर बिकमिंग वायरल। तो उस चीजों की बातों को सीरियसली मत लो। थिंक फ्रॉम योर पर्सनल पर्सपेक्टिव। फॉर यू इज इट इम्पोर्टेंट अर्निंग, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कहीं ना कहीं द वे यू go ahead in your life it will flow no matter what। इंसान जो आर्टिस्ट है वो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, जो बहुत अच्छा पेंट कर रहे हैं। और कोई कोई लोग जो जॉब वाले जो एमबीए कर चुके हैं वो 2 लाख रुपए महीने का, 30 हजार रुपए महीने, 20 हजार रुपए महीने भी कमा रहे हैं। तो आप अपनी फील्ड में अगर एक्सपर्ट हो, आप अपनी चीजें वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो nothing better than that। So focus on yourself rather than listening to thousands of influencers। That is quite thoughtful, sir. That one should always follow the heart. And Shivam had it out. Shivam, would you like to ask? Yeah, really insightful till now. Just to like I think we're about to end the podcast. तो Yeah, मेरे को बस आपसे ये जानना था, पहले तो जो लर्निंग मेरे को मिली है पूरे पॉडकास्ट से वो ये है दैट ये जितने भी क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब होता क्या है वो लोग आके अपना कंटेंट आउट कर देते हैं बिकॉज दैट इज देयर ओपिनियन ऑन समथिंग, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज दैट स्पेशली द जेन जी, they get influenced by this is including myself, of course I'm also a part of the community, so they get influenced by this and ultimately उन्हें लगता है यही पाथ है जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। बट definitely, लर्निंग मैंने इस पॉडकास्ट से पूरा लिया है वो ये है दैट यू आर ऑन योर ओन जर्नी, तुम सुनो सबकी बट करो अपनी। दैट इज definitely, समथिंग दैट for आई हैव sure। लर्न। सो मेरे को आप मेरा, हाँ, हाँ, आप बोलो बोलो, आप हाँ, तो बोलो। मेरे को उसी पे एम्फसाइज करके आपसे लास्टली यही पूछना है दैट what are the myths that you'd like to burst at the end of the podcast, जो आपको लग रहा है कि यार ये चीजें मेरे को पॉइंट आउट करनी है कि ये चीज से इन्फ्लुएंस मत होना, कि जो ये कोई भी कुछ पॉइंटर्स, कोई फैक्टर्स। For sure। First learning that I would tell you that's really important for you। Instagram खोलते हो, हर जन की लाइफ बहुत ही गजब है। हर इंसान यूरोप जा रहा है, हर इंसान मलेशिया जा रहा है, वियतनाम जा रहा है। आप फेसबुक खोलते हो, हर इंसान की शादी हो रही है, ठीक है? हर इंसान को अपनी लव ऑफ देयर लाइफ दे आर गेटिंग इट, राइट? आप ट्विटर खोलते हो, आपको दिखेगा कि कैन यू हियर मी? या
आप ट्विटर खोलते हो, कैन यू हियर मी? Yeah. sure. या आप अगर ट्विटर खोलते हैं आपको स्क्रीनशॉट दिखेंगे प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। लिंक्डइन देखोगे आपको दिखेगा हर इंसान जॉब में एकदम एक्सेल कर रहा है, दे आर गेटिंग द बेस्ट थिंग्स इन देयर लाइफ, बट यू नीड टू सी कि आपको लगता है कि इंसान को सब कुछ मिल रहा होगा। 90% ऑफ व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज फेक। आपको वो चीजें देखनी है जो असल में हो रही है। दैट्स द बिगेस्ट मिथ कि एवरीवन इज गोइंग परफेक्टली फाइन इन देयर जर्नी। Try to follow those creators or those influencers or those people who show you the real truth rather than showing someone who earns profit. कोई इंसान प्रॉफिट नहीं कमाता है, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मैं इसमें कमाता हूँ, बट अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ आई वुड जस्ट स्ट्रेट अवे से कि भाई नहीं कमा रहा हूँ, मैं क्रिप्टो में नुकसान में हूँ, आई राइट कि क्रिप्टो इज, आई डोंट लाइक क्रिप्टो, मुझे पसंद नहीं है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु यू वांट टू फॉलो, हु यू वांट टू लर्न फ्रॉम, दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली ये जो मिथ ये है कि 20s is something, मैं बता रहा हूँ मेरे जो I'm 25 right now, my friends around me, everyone is very worried कि you know what they are going to do in their life, what am I going to achieve in my life, I am running so behind with respect to different things from my peers, क्योंकि मेरा जो 25 साल का दोस्त है वो यूरोप जा चुका है, यूएस जा चुका है, उसकी 50 करोड़ रुपए की जॉब है, 5 करोड़ की जॉब है, सब मैं कुछ भी नंबर बोल दूं, राइट। और दूसरी तरफ मेरे 50 साल के अंकल है, उनसे बात करता तो वो मुझे बोलते हैं यार अभी तो जिंदगी मेरी आगे बढ़ी है, मैं कुछ जो करना मैं करूंगा। तो थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, यहाँ 25 साल का बच्चा सोच रहा है उसके पास लाइफ में कुछ बचा नहीं है, टाइम जा चुका है, और 50 साल का इंसान बोलता है कि माय होल लाइफ इज अहेड ऑफ मी। सो यू नीड टू थिंक कि एवरीवन इज ऑन देयर ओन जर्नी, यू आर एट योर ओन जर्नी, यू डिटरमिन व्हाट डू यू वांट टू डू, हाउ डू यू वांट टू अचीव, अपने आपके लाइफ में आपका गोल क्या है, थिंक फोकस ऑन दैट। साइड की चीजें जो होते रहेगी, डू नॉट लेट दीज गाइज एंड दिस पीपल इन्फ्लुएंस यू कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, मुझे ये करना है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू फील। आपकी जर्नी, आपका सर्कमस्टांस उनको नहीं पता, आपके घर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको नहीं पता। फॉर यू योर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, वो उनको नहीं पता। फॉर देम मनी इज इंपॉर्टेंट, फॉर देम गेटिंग यू इन्वेस्टेड ताकि उनको रिटर्न मिले इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट दे गोइंग टू फोर्स। तो आपको वो पर्सपेक्टिव से सोचना है कि इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज माय बिगेस्ट टेक अवे। I think its पूरे podcast का नाम was Fix Your Finances, and the points that you've mentioned throughout 1 hour of this podcast have been really insightful and spot on. ये मतलब पूरे हमारे टॉपिक से एकदम रिलेट कर पा रहा है, because and other than fixing our finances, I think you've bursted out a lot of our myths that the Gen Z follows. So thank It's you so more much. about fixing your personality and fixing your, you know, the way you perceive things. Yeah. आप LinkedIn, सोशल मीडिया कहीं भी उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपको वैल्यू ऐड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। आप उन लोगों को फॉलो मत करोगे व्हाट यू शुड डू इन योर 20s, व्हाट यू डू इन योर 30s, अगर आप रिलेट नहीं करते हो तो, ठीक है। इफ आई डोंट रिलेट विद समवन आई अनफॉलो, मुझे नहीं देखना, मुझे इंस्टाग्राम के पिक्चर्स नहीं देखना, लिंक्डइन पे मुझे ये सब चीजें नहीं देखना। इफ आई डोंट लाइक इट आई वोंट डू इट। तो आप अपनी जर्नी पे हो, डू नॉट लेट दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस यू। Thanks for Yeah, that. Dhruv. Yeah. I think we are running Dhruv short. has it out. I'm audible? Yes, you're Yes. audible. हाँ, तो जैसे भी आपने बताया कंपटीशन के इसमें सोशल मीडिया अपडेट होती है, पर सोशल मीडिया के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। लाइक अ स्मॉल, जैसे स्मॉल स्टार्टअप है, वो क्या कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप बिजनेस, लिंक्डइन पे मार्केटिंग वगैरह, पेटीएम से मर्चेंट वगैरह, तो उसके लिए तो यूजफुल है। पर अगर हम यूज ही नहीं करेंगे, कस्टमर यूज ही नहीं करेगा, तो वो तो उसके लिए भी यूजफुल नहीं होगा फिर। तो इसलिए यूज तो करना ही पड़ेगा दोनों को। आप अभी पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, बिजनेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हाँ। आप यूजर पर्सपेक्टिव के लिए सोचो। आप जैसे अभी शिवम की बात थी, शिवम बोल रहा है कि he'll get influenced by influencers and people, जो मिथ उसके दिमाग में होगा, राइट। बट फॉर बिजनेस, उनको तो बिजनेस मिल रहा है, दे वर सक्सेसफुली एबल टू इन्फ्लुएंस शिवम, राइट। तो तुम जो बात कर रहे हो कि व्हाट्सएप बिजनेस कर सकते हैं, दैट्स फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, कि उसे क्या चाहिए लाइफ में वो देखे। बिजनेस को क्या चाहिए वो तो बिजनेस देख ही रहा है, राइट। बिजनेस तो जिस तरीके से मैनेज कर सकता है, सोशल मीडिया से बड़ा कोई बिजनेस ही नहीं है, राइट। आजकल कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, राइट। आई डू नॉट लुक एट न्यूज़पेपर, मैं टीवी में ऐड नहीं देख रहा क्योंकि मैं टीवी ऑन ही नहीं करता हूँ। मेरा 90% ऑफ टाइम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वगैरह पे जा रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रीडिंग एंड लुकिंग एट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, एंड माय लाइफस्टाइल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज इन्फ्लुएंसर्स। तो वही लोग कर रहे हैं, वही बिजनेसेस टारगेट कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे स्पेंड करो, एंड इन्फ्लुएंसर जो खरीदने बोलेगा वो लोग खरीदेंगे। सो दैट इज व्हाट पीपल आर डूइंग, एंड बिजनेस भी वही कर रहे हैं। तो आपको अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है, ना कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से। और जैसे आपने भी बताया, वो पर्सपेक्टिव से वो सोचो आप। हाँ, पी प्रेशर, जैसे आपने बताया कि आपका एक दोस्त है 25 एज का और 50 वाला,
दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जैसे जैसे लाइफ में जाएंगे हमारे। Yeah. तो लाइक जैसे अभी मैं अर्ली 20s में हूँ, है ना, तो मेरे लिए अभी सिंपली एजुकेशन एंड अर्निंग स्टार्ट करना है, दो पर्पस। तो होता ही नहीं है ना, एकेडमिक्स का कुछ होता है, जस्ट स्टार्ट करना है। जैसे जैसे 2023 आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, तो Okay. हाउ मैं पहला स्टेप क्या लूँ? भाई यार वो तो इंसान के लिए, अगर मुझे मुझे पता होता मेरे पास स्टेप क्या होता तो मैं भी अभी बिजनेस रन कर रहा होता, मैं भी जॉब नहीं कर रहा होता। फर्स्ट चीज तो ये। बट फॉर यू, आपको डिटरमिन करना है। अगर आपको बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है तो आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप लोगों को ढूंढो आपके लाइक माइंडेड, क्योंकि एक इंसान बिजनेस पूरा रन नहीं कर सकता, राइट? सिर्फ यही चीज सब कुछ नहीं कर सकता। आपके जैसे लोगों को ढूंढ लो जो पैशनेट है वो चीज के लिए, उनसे बात करो हाउ डू यू डू इट, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, राइट? दैट इज वन थिंग। बट फॉर यू, अगर आपके लिए भी पैसा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो हर इंसान की सिचुएशन अलग है। इंसान रिस्क कभी नहीं ले सकता बिजनेस के लिए। अभी वो जॉब सोच रहा होगा कि मेरे को फिक्स आते रहे हर पैसा, उसके साइड में जो पैसा कमाना है वो अलग चीज है। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस कि भाई मुझे स्टार्टअप कल्चर बहुत सही है, सबको लगता है बहुत अच्छा है कि स्टार्टअप से बहुत ही पैसा कमा लूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा एक दिन के अंदर। इट्स गुड इफ यू कैन सक्सेसफुली पुल इट ऑफ, बट 100 में से 98 स्टार्टअप्स फेल, दो स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं। इफ यू थिंक योर ऑड्स आर इन फेवर, गो ahead with it. If you don't, if it's still a learning for you, still do it. If you still feel ki your family everything is dependent on this, तो I would say कि focus on a fixed resource first and then साथ में चालू करना. But just don't devote 100% to something if you are, if your family and everyone is dependent on your earning. तो वो सोच के करना. Absolutely, with our clear heads, I guess now we're good to conclude with our today's event. On behalf of the entire team of EDC, we are grateful for our honorable speaker for devoting their precious time and sharing their views with us. We're also grateful to all the participants who have made this event a great success with their presence. Thank you once again and have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ishita. Thank you, Vaibhav, Shivam, and Roof. Great talking to you.